یہ ضلع شرانی میں مسافر بس کھائی میں گرنے سے قیامت صغریٰ برپا ہو گئی۔ قیامت خیز حادثے میں 19 سے زائد منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی ابدی نیند سو گئے ہیں۔ زندگی کا سفر موت کے سفر میں کیسے بدلا، یہ جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کس سے خبر تھی کہ یہ سفر آخرت ہوگا؟ کون جانتا تھا کہ منزل پر پہنچنے سے پہلے موت منتظر ہوگی؟ اسلام آباد سے ضلع شرانی جانے والی مسافروں کی زندگیوں کو موت نے اچک لیا۔ ضلع شرانی کے علاقے دانا سر میں راولپنڈی سے کوئٹہ جانے والی مسافر بس کھائی میں گر گئی۔ حادثے میں کئی افراد موت کے منہ میں چلے گئے۔ حادثہ شرانی کے پہاڑی علاقے دانا سر میں بارش کے باعث پھسلنے کے نتیجے میں پیش آیا۔ بس بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ بس میں 30 سے زائد افراد سوار تھے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ متعدد زخمیوں کو یوب سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کی جگہ پر رقصہ موت نے ہر دل جھنجھوڑ کر رکھ دیا تو ہر آنکھ نم ہو گئی۔ مختلف شہروں میں فائرنگ کے واقعات میں 4 افراد سے جینے کا حق چھین لیا گیا۔ خون سفید ہو گیا۔ کشمور میں بجلی نہ دینے کی معمولی بات پر نواحی گاؤں میں ماموں اور بھانجوں میں جھگڑا ہوا۔ گولیاں چل گئی۔ اپنے ہی بھانجے نے فائرنگ کر کے ماموں اور اس کی بیٹی کو قتل کر دیا۔ سمندری میں گھریلو جھگڑے پر دیور نے کلہاڑی کے وار کر کے بھابھی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ چارسدہ کی تحصیل شب قدر بازار میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سینئر صحافی افتخار احمد کو قتل کر دیا گیا۔ مقتول کے بھائی نے معلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ جہلم میں معمولی رنجش پر رکشہ ڈرائیور نے موٹر سائیکل مکینک کو زخمی کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ کرک میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی۔ تحصیل بانڈا داؤد شاہ کے علاقہ جھٹا اسماعیل خیل میں ہیضے نے درجنوں افراد کو ہسپتال پہنچا دیا۔ ہیضہ وبا سے بچوں سمیت 80 افراد متاثر ہوئے۔ وبا کی جانچ پڑتال کے لیے مریضوں سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے نمونے لے لیے ہیں۔ وبا کی جانچ پڑتال کے بعد ان کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ شیخو پورہ کے تھانہ صدر فاروق آباد کے علاقہ بھنڈور میں کم سن بچی زیادتی کا شکار ہو گئی۔ 4 سالہ جنت سے نامعلوم شخص کی زیادتی۔ ڈی پی او فیصل مختار کے مطابق تھانہ صدر فاروق آباد پولیس نے والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بچی کو میڈیکل کے لیے DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے 5 مشتبہ افراد کو اپنے حراست میں لے کر مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بارے میں بات کریں اور آپ کو بتائیں، عارف والا میں مہنگائی کا طوفان سب بہا لے گیا۔ کھاد، بجلی سمیت تمام اشیاء کے نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ بڑھتی مہنگائی نے غریب عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ نذیر احمد کھرل رپورٹ کریں گے۔ اشیاء خرد و نوش سمیت بجلی، گیس، پٹرول، ڈیزل وغیرہ اتنے مہنگے، غریب عوام تو غریب عوام، سفید پوش طبقہ بھی بہت زیادہ پریشان۔ ہر طرف ہر چیز میں مہنگائی کے طوفان، کدھر جائیں کوئی پرسان حال نہیں۔ عوام کے لیے ریلیف ملنا چاہیے۔ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ غریب عوام کے لیے جینا بہت مشکل ہو گیا ہے جی۔ مزدور کی مزدوری نہیں بڑھ رہی، جو دعوے کیے جاتے ہیں اس پہ کوئی عمل نہیں کیا جاتا، تو چاہیے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ غریب عوام کا ریلیف دینا چاہیے۔ عوام کا مزید کہنا ہے کہ ہماری وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے گزارش ہے اور ان سے بہت زیادہ توقعات بھی ہیں، برائے مہربانی مہنگائی کو کم کرے تاکہ ہم 2 وقت کا کھانا تو اپنے بچوں کو کھلا سکیں۔ کیمرہ ٹیم راشد انجرا اور فیض فرید کھچی کے ساتھ نذیر احمد کھرل، سچ ٹی وی، عارف والا۔ سٹھارجہ میں غریب عوام پر ایک بار پھر سے پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث تمام اشیاء غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے۔ عبدالمطلب بلوچ رپورٹ کریں گے۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی روزمرہ کے اشیاء خرد و نوش کی قیمت آسمان پر پہنچ گئے ہیں، جس سے غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے جو نیچے والا عوام ہے، جو غریب عوام ہے، اس پہ زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اس لیے ہم حکومت سے التجا کرتے ہیں تو برائے مہربانی کر کے پیٹرول سستا کیا جائے۔ مہنگائی نے غریب اور سفید پوش طبقے کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے تاکہ غریب عوام بھی 2 وقت کی روٹی کھا کر اپنا زندگی بسر کر سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبدالمطلب بلوچ، سچ نیوز، سٹھارجہ۔ ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان برپا ہو گیا۔ غریب عوام کی پہنچ سے ہر شے دور ہو گئی۔ آئے روز مہنگائی سے شہری عاجز آ گئے۔ کہتے ہیں ہم آخر جائیں تو جائیں کہاں؟ مہنگائی کی چکی میں پسنے والے دہائیاں دینے لگے۔
हाय रे महंगाई, तुझे मौत क्यों ना आई। आए रोज बढ़ती महंगाई पर देने लगी अवाम दुहाई। यहाँ भी महंगाई वहाँ भी महंगाई, गरीब अवाम सोने के भाव हर चीज बिकने पर है हलकान। कहते हैं रोटी तक मुयसर नहीं, अब क्या दे दे जान। गोया मरे को मारे शामदार, अवाम की जेबों पर महंगाई के वार पर वार। महंगाई की है चारों तरफ से यलगार, इधर चीनी और आटा महंगा हुआ तो उधर सब्जियां और फल भी हुए अवाम की पहुंच से दूर। महंगाई की ये इफ्ताद यहीं तक नहीं है महदूद, महंगाई की जलती आग पर हुकूमत बार बार पेट्रोल छिड़कने लगी। सड़कों पर या सरकारी और उनके हवारियों की गाड़ियां रह गई या दौलत के पुजारियों की गाड़ियां रह गई। शहरी कहते हैं हमारे हाल पर रहम खाएं, खुदा हमें महंगाई से निजात दिलवाएं। अब तो 2 वक्त की रोटी भी हुई महंगी, क्या हम जान से ही जाएं। कसूर में रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई में तामीराती मटीरियल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। वहीं जिला कसूर के भट्टा मालकान यूनियन ने पेट्रोल, डीजल और कोयले की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल न करने पर भट्टे बंद करने और हड़ताल का ऐलान कर दिया, जिससे ईंटों का बहरान पैदा हो जाएगा। चौधरी वसीम रिपोर्ट करेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में ठहराव न होने की वजह से कसूर के भट्टा मालकान ने 10 जुलाई से भट्टे बंद करके हड़ताल करने का ऐलान कर दिया। ओहदेदारान का कहना है कि पेट्रोलियम और कोयले की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं, हम मजीद भट्टे नहीं चला सकते। शिद्दत नाल महंगाई हुई है कि जिहड़ा तकरीबन 10,000 रुपए का टन सी वो 20 का नहीं, 25 का नहीं, 30 तो भी प्लस 30-35,000 रुपए का टन हो गया है। कैरेज फी टन का तकरीबन 4500 तो लैके 4800 रुपए आ रहा सी, वो तकरीबन इस वेले 6800 7,000 ਨੂੰ टच कर गया है। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ उनके विच इतने को मसाइल पैदा हो गए हैं। भट्टा मालकान की हड़ताल और भट्टा जात बंद करने पर मार्केट में ईंट के बहरान का खदशा है। हड़ताल बढ़ाकर न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान तक फैलाने का इंदिया भी दिया है। ईंट के बहरान के बाद जहां तामीराती काम मुतासर होगा, वहीं लाखों मजदूरों के चूल्हे भी ठंडे होने का खदशा है। कैमरा टीम के साथ चौधरी वसीम, सच न्यूज। बारिश हुई ना ही सैलाब आया। दादू शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रेन सिस्टम नाकारा हो गया। गटरों का पानी सड़कों पर झील का मंजर पेश करने लगा। इलाका मकीन सख्त अजियत में मुब्तला है। शुएब तहीम रिपोर्ट करेंगे। पीपुल्स पार्टी का किला और वियतनाम के नाम से जानने वाला दादू शहर मसाइल का गढ़ बन गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम न होने के बायस गटरों का गंदा पानी सड़कों पर झील का मंजर पेश करने लगा है, जिसके बायस शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई है। अपनी ये सेहत के हिसाब से जो है ना मलेरिया हो जाती है, बच्चों को कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई देखने वाला ही नहीं है। शहर के मुख्तलिफ इलाके दौरे जदीद में भी ड्रेनेज की सहूलत से महरूम है, जिसके बायस सीवरेज का पानी सड़कों पर तालाब का मंजर पेश करने लगा है। सफाई न होने के बायस तहफुन फैल रहा है और इलाके में मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। दादू के शहरी दौरे जदीद में भी जिंदगी की बुनियादी सहूलत से महरूम है। शुएब तहीम, सच टीवी, दादू। हैदराबाद में तफरीही पार्क मौजूद ही नहीं, जो थे इंतजामिया उसको भी न संभाल सकी। लतीफाबाद का पार्क खाना बदोशों की रिहाइशगाह बन गया है। अली शेख रिपोर्ट करेंगे। सिंध का दूसरा बड़ा शहर अवामी पार्क से तो महरूम था ही, अब रहे सहे पार्क पर इंतजामी चशमपोशी के बायस खाना बदोशों और पार्किंग माफिया ने कब्जा कर लिया। जगह जगह कचरे के अंबार और लकड़ी की टाल ने पार्क को कचरा कूड़ी में तब्दील कर दिया है। हर जगह पार्क बन रहे हैं, यहाँ पे खाना बदोशों ने कब्जा किया हुआ, पार्किंग की जगह दिया, लोगों ने कारोबार बना लिया ना यहाँ पर। अब ये पार्क का मसला है तो पार्क बनना चाहिए यहाँ पर ना। शहरियों ने मुतालबा किया है कि शहर की रौनक बहाल करने के लिए तबाहाल पार्क की तज़ीन व आराइश करके कब्जा माफिया से आज़ाद कराया जाए। कैमरा टीम के साथ अली शेख, सच न्यूज़, हैदराबाद। महकमा ज़राअत की अदम दिलचस्पी के बायस कपास की फसल पर मुख्तलिफ बीमारियों ने हमला कर दिया। फसल मुतासर होने पर पैदावार में भी नुमाया कमी का इम्कान है। काश्तकार सर पकड़ कर बैठ गए हैं। रिपोर्ट करेंगे उमर हयात सहू। कच्चा खून समेत जनूबी पंजाब में कपास की फसल पर मुख्तलिफ बीमारियों के हमले में शिद्दत आने से रवां साल न सिर्फ महकमा ज़राअत के लिए मुकर्रर अहदा पूरा करना मुश्किल हो गया है, बल्कि किसानों की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। महकमा ज़राअत की अदम दिलचस्पी से मार्केट में जेली पेस्टिसाइड के बायस कच्चा खून गिर्द नवाह के इलाका जात में कपास की फसल पर मुख्तलिफ बीमारियाँ सफेद तेला, थ्रेप्स, फंगस, माइट सफेद मक्खी का हमला शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिससे पैदावार में भी फी एकड़ 10 मन कमी का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है और किसान सूरत हाल से परेशान दिखाई देते हैं। कपास पर महंगे से महंगे स्प्रे भी कर चुके हैं, मगर बीमारियां जूं की तूं हैं। मेरी गुजारिश है महकमा ज़राअत से कि हमें कपास की फसल के लिए मुफीद मशरे फराहम करे। ज़राई माहिरीन के मुताबिक कपास की फसल पर मुख्तलिफ बीमारियों के हमले से पौधे की नशोनुमा रुकने के साथ पत्ते के सूखने जैसे मसाइल आ रहे हैं। काश्तकार फसल को ज्यादा से ज्यादा पानी लगाएं और शाम के औकात में फर्नेसाइल मिलाकर स्प्रे करें। कैमरा टीम के साथ उमर हयात, सच न्यूज़, कच्चा खून।
आरिफ वाला में दरख्तों की कटाई का सिलसिला सरेआम जारी है। काटे गए दरख्तों को ट्रॉलर के जरिए चोरी करके ले जाया जा रहा था। असिस्टेंट कमिश्नर ने कामयाब कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत के दरख्त चोरी होने से बचा लिए। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर से जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। बहावल नगर में सूरज आग बरसाने लगा तो दूसरी जानिब जबरी लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। तवील लोड शेडिंग के बायस कारोबारी हजरात परेशानी का शिकार है। राजा कोकब इफ्तिखार रिपोर्ट करें। मौजूदा हुकूमत की जानब से बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफे के बावजूद शदीद गर्मी और हबस के इस मौसम में मैपको की जानब से बहावल नगर शहर और गिरदोनवा में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 14 घंटे जबकि दही इलाकों में 16 से 18 घंटों से भी तजावज कर चुका है, जिसकी वजह से गर्मी से सताए हुए शहरी बिलबला उठे हैं और बिजली महंगी होने से इनकी मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। शहरियों को कहना था कि सारा काम बिजली पर है। लोड शेडिंग से कारोबार ठप हो चुके हैं और आवाम ज़हनी मरीज बनते जा रहे हैं। शहरी बहुत परेशान है ने जिंदी वजह नाल 15 16 18 घंटे लोड शेडिंग की वजह नाल कारोबार ठप हो गए ने ते दूसरा आवाम बहुत ज़हनी मरीज हो गई है। मैपको की जानब से होने वाली तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहर भर में पानी का बहरान भी सर उठा रहा है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कोकब इफ्तिखार, सच न्यूज़, बहावल नगर। मियांवाली में जीप लाइन का इफ्तिताह कर दिया गया। जीप लाइन का इफ्तिताह सेक्रेटरी टूरिज्म डेवलपमेंट ने किया। डीसी मियांवाली का कहना था कि मियांवाली को सयाहत का मरकज बनाएंगे। रिपोर्ट करेंगे जाहिद अब्बास। जिप लाइन के इफ्तिताह सेक्रेटरी टूरिज्म डेवलपमेंट एहसान भुट्टा और डीसी मियांवाली उमर जावेद ने किया। सुपरवाइजर टूरिज्म जलील खान खटक ने फेरी बोर्ड सर्विस और जिप लाइन के हवाले से ब्रीफिंग दी। डीसी मियांवाली उमर जावेद ने कहा कि मियांवाली को सियाहत का मरकज बनाएंगे। यहाँ के कुदरती मनाजिर अपनी मिसाल आप हैं। इस जिले के अंदर जितना पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है और ये इस सिलसिले की एक कड़ी है। इंशाअल्लाह ताला सर, आप लोगों ने जो इनिशिएटिव लिया और ये सारा प्रोजेक्ट बनाया उसकी हम यहाँ पर पूरी हिफाजत करेंगे। जिला मियांवाली आसार कदीमा के साथ साथ दरिया सिंध के किनारों खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ कुदरती मनाजिर से मालामाल इलाका है। यहाँ कालाबाग डैम साइट, चापरी डैम, चश्मा झील, नमल झील जैसी मुतअद्दिद ऐसी जगह हैं जहाँ सियाहती पॉइंट बनाकर मियांवाली को सियाहों का मरकज बनाया जा सकता है। कैमरामैन आशा के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज़, मियांवाली। रुझान में मवेशी मंडी सज गई दूध की तरह, सफेद रंगत, निखरी आंखें, नखरे वाली चाल की हीरा और राजा की जोड़ी ने धूम मचा दी। रिपोर्ट करेंगे मलिक तुफैल। ईद कुर्बान आते ही मवेशी मंडी में रौनकें बहाल हो चुकी हैं। मंडियों में हीरा और राजा की जोड़ी के चर्चे हैं। सफेद बकरों की जोड़ी अपनी चाल ढाल, कद काट और खूबसूरती में मुनफरद हैसियत रखते हैं। मालिक का कहना है कि इन दोनों को बड़े नाज और प्यार से पाला है। मवेशी मंडी में शहरियों का रश लगा हुआ है। मालिक का कहना है कि 1,90,000 का भाव लग चुका है, मगर हीरा और राजा की जोड़ी 2,50,000 से कम नहीं दूंगा। मवेशी मंडी में लाई गई खूबसूरत बकरों, हीरा और राजा शहरों के तवज्जो का मरकज बना हुआ है। कैमरा टीम के साथ मलिक तुफैल, सच न्यूज़, रोजान। ईद कुर्बान करीब आते ही ढुडियाल में भी मवेशी मंडी सज गई, जहां बकरे, दुम्बे और खूबसूरत बैल आवाम की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान के आते ही मुल्क के दूसरे शहरों की तरह ढुडियाल में भी मवेशी मंडी सज गई, जहां पर खूबसूरत बैल और बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए, मगर महंगाई इतनी कि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी मुश्किल हो गई। ढुडियाल मंडी दे विच आए हैं बकरे दी खरीदारी करन वास्ते। छोटे छोटे बकरे ते काफी महंगी रेट में चल रहे हैं। बड़े बकरे तो बिल्कुल डंगरा वाली भाव मांग रहे, लाख रुपया, 1,20,000 रुपया। छोटा जहा बकरा की कीमत भी इस वक्त 50,000 45,000 रुपया है। ढुडियाल में लगी मवेशी मंडी में जहां खूबसूरत जानवर लाए गए हैं, वहीं पर इनके हार सिंगार करने के लिए मुख्तलिफ स्टॉल भी लगाए गए हैं और कुर्बानी के इन जानवरों की तवाज़ो के लिए खास तौर पर गुड़ की फरोख्त भी जारी है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने वाले शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में इस्तेकाम लाया जाए ताकि बआसानी इस फरीजे को अंजाम दिया जा सके। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसफ अली नायक, सच न्यूज़, ढुडियाल। ईद कुर्बान की आमद। मटियारी में मवेशी मंडियां सज गई। मंडी में मुल्क भर से कुर्बानी के जानवर फरोख्त के लिए लाए जा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे आरिफ अली।
ईद उल अजहा की तैयारियों का सिलसिला अरूज पर पहुंच गया। मंडियों में व्यापारियों का तांता बंध गया। शहरी कहते हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत कीमतें बढ़ गई हैं। शहरी कीमत ज्यादा होने का शिकवा कर रहे हैं तो व्यापारियों का कहना है कि महंगा जानवर खरीद कर सस्ता बेच नहीं सकते। गरीब आवाम जानवरों की कीमतें सुनकर खाली लौटने पर मजबूर हो गए हैं। गरीब आवाम के लिए सुन्नत इब्राहिम की अदायगी भी नामुमकिन हो गई। व्यापारी कहते हैं कि ग्राहक जानवर की जो कीमत देना चाहता है उससे तो उनका खर्चा ही पूरा नहीं होता। अभी तक ज्यादातर खरीदार जानवर को सिर्फ देखने पर ही इत्तफा कर रहे हैं। ईद उल अजहा करीब आते ही भवाना की मवेशी मंडियों में व्यापारियों का रश लग गया। हर कोई अपने मनपसंद जानवर खरीदने में मसरूफ है। नासिर अली कारब रिपोर्ट करेंगे। भवाना ईद उल अजहा करीब आते ही कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया है। इंतजामिया की तरफ से नलका अड्डा के मकाम पर मवेशी मंडी सजाई गई है, जहाँ पर ग्राहकों और व्यापारियों का रश लग गया है। खरीदार की ख्वाहिश है कि उसको खूबसूरत, फरबा और सस्ता जानवर मिले, जब व्यापारियों की ख्वाहिश है कि उनका जानवर ज्यादा से ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो। इस बढ़ती हुई महंगाई में आम आदमी के लिए सुन्नत इब्राहिमी अदा करना मुश्किल हो गया है। मंडी में माल डंगर लेके आए थे, लेवन देवन वाला की कोई आया तो मोली थोड़ा आ रहा है। साल रख के मेहनत कर करके बंडा पट्टे सब महंगाई जगह दो पा के कोई लबदी नहीं पे। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी तौर पर अमली इकदाम किए जाएं ताकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जा सके। कैमरा टीम के साथ नासिर अली कारब, सच टीवी भवाना। चनियोट में ईद उल अजहा की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। लोहारों का कारोबार चमक उठा। शहरियों ने टोके और छुरियां तेज करवाने के लिए मार्केट्स का रुख कर लिया है। अब्दुर्रहमान कलियार रिपोर्ट करेंगे। ईद कुर्बान के करीब आते ही जहां मंडी मवेशियों में लोगों का रश बढ़ जाता है, लोग बड़ी तादाद में कुर्बानी के इस्तेमाल के लिए टोके और छुरियों पर धार लगवाने के लिए मार्केट का रुख करते हैं। टोके छुरियां वगैरह तेज करवाने आए हैं क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है, इसलिए ताकि जानवर को ज़िबा करते हुए कोई तकलीफ ना हो। सुन्नत इब्राहिम अदा करने के लिए जानवर जितना ही महंगा और खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन अगर छुरी की दार कम हो तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने से पहले छुरी की दार अच्छे तरीके से बनवा लें। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चनियोट। ईद कुर्बान से कबल शहरियों ने लोहारों की दुकानों का रुख कर लिया, जहां पर शहरियों ने लोहारों से पुराने औजार तेज करवाना शुरू कर दिए हैं। मुजफ्फरगढ़ से समीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। ईद कुर्बान के नजदीक आते ही जानवरों की खरीदारी के साथ साथ छुरियां व दीगर औजार बनाने वालों का कारोबार भी अरूज पर पहुंच जाता है। जहां पर महंगाई की वजह से जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, वहीं पर नई छुरियां व दीगर औजार महंगे होने की वजह से शहरी औजार तेज करवा कर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। जी अब बहुत ज्यादा महंगाई है। पहले की निस्बत पहले जो हमारा काम था कि 1.5-2 लाख की हम हो जाती थी कुर्बानी, पैसे भी निकलते थे, अब नहीं है बिल्कुल भी। अब 10% भी हमारा काम नहीं है पिछले साल की निस्बत। महंगाई थी, एक तो लोड शेडिंग, एक महंगाई, एक रेट इतने ऊपर हो चुके हैं कि हम इतने परेशान हैं। नई छुरियाँ खरीदने के लिए दुकान पे आया हुआ हूँ। यहाँ पर जो है छुरी 200 से 250 की खरीदते थे, वो छुरी 500 से लेकर 600 की खरीद रहे हैं। जो पहले छुरा हम 500-600 का खरीद के जाते थे, वो 1000 से 1200 रुपए का खरीद रहे हैं। इस वजह से महंगाई की वजह से हम खरीद नहीं सक रहे। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग और महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। दीगर खबरों में आपको बताएंगे, हैदराबाद समेत सिंध भर में लंपी वायरस के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया। मुतासरा जानवरों की तादाद 53,000 से भी तजावुज कर गई। हैदराबाद महकमा लाइफ स्टॉक के मुताबिक सिंध में लंपी वायरस से मुतासरा जानवरों की तादाद 53,598 हो गई है। मुख्तलिफ शहरों में डकैती और राहजनी की वारदातों में तेजी से इजाफा होने लगा। सियालकोट में मुतअद्दिद शहरी लुट गए। फुटेजेस सामने आने के बावजूद भी जराइम पेशा अनासिर पुलिस की गिरफ्त में न आ सके। सियालकोट में डकैतियों का सिलसिला न थम सका। ईद के करीब आते ही डाकू एक्शन में आ गए। दिन दिहाड़े शहरियों की जमा पूंजी से महरूम करना मामूल बना लिया। थाना कोताली के इलाके पेरिस में डाकुओं ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान लूट ली। हाजीपुर के इलाके से डाकू फार्मेसी से लाखों रुपए ले उड़े। थाना रंगपुरा समेत मुतअद्दिद इलाकों के शहरी बाइक छीनने और राजधानी से तंग आ गए। डकैती मुज़ाहमत पर मुतअद्दिद शहरी जख्मी भी हुए। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बावजूद पुलिस मुलजमान को पकड़ने में नाकाम रही। उधर कोट राधा किशन के नवाई गांव भेल में डाकुओं ने घरों का सफाया कर लिया। अहले खाना को यरगमाल बनाकर 4 घंटे वारदात करते रहे और नकदी, तलाई जेवरात और कीमती अशिया लेकर बासानी फरार हो गए। अहले इलाका ने डाकुओं को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। यजमान मंडी के शहरियों का देरीना मसला हल हो गया। यजमान में रेस्क्यू सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। सर्विस सेंटर में गाड़ियां, मेडिकल बाइक और दीगर सहूलियात फराहम की गई हैं। कमल महमूद रिपोर्ट करेंगे।
यजमान रेस्क्यू 1122 की सर्विस का इफ्तिताह वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च तरबशी चीमा ने किया। वफाकी वजीर का कहना है कि रेस्क्यू 1122 के लिए इब्तदाई तौर पर एम्बुलेंस मोटरसाइकिल बैग शामिल होंगे। यजमान मंडी की आवाम को मुश्किलात दूर होंगी। 1122 की इमरजेंसी सर्विस का मैंने आज इफ्तिताह किया है और इंशाअल्लाह ताला ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है जो यजमान तहसील को मिला है, एक रिमोट तहसील को मिला है। अल्लाह ताला ने चाहा तो ये लोगों की तकलीफों की कमी का बायस बनेगी इंशाअल्लाह। इस इलाके के लोगों को फ़ायदा होगा, किसी भी इमरजेंसी की सूरत में बर वक्त उनको तिबी इमदाद मिल सकेगी और कोई भी किसी किस्म की भी इमरजेंसी होगी इंशाअल्लाह ताला ये हम बर वक्त उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। शहरियों ने यजमान में इमरजेंसी सर्विस 1122 के आगाज को खुशाइंद करार दिया है। आज 1122 सर्विस का हमारे शहर में आगाज हुआ है। ये हमारे शहर के लिए बहुत अच्छी सर्विस है। ये किसी भी हादसे के लिए ये बर वक्त जो इमदाद मिल जाती है, ये हमारे शहर के लिए बहुत ही अच्छी सर्विस है। यजमान के शहरियों को बर वक्त तबी इमदाद मिलने से कई कीमती जानों को बचाया जा सकेगा। कैमरा टीम के साथ चौधरी कवल महमूद, साइट टीवी, यजमान। अल मेहदी हस्पताल पक्की शाह मर्दान जिला मियांवाली में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। सैकड़ों मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। जाहिद अब्बास रिपोर्ट करेंगे। अल मेहदी हॉस्पिटल पक्की शाह मर्दान जिला मियांवाली में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिकल कैंप में कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर मोहम्मद नौखेज खान न्याजी, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ज़ेगम अब्बास और फिजियोथेरापिस्ट साइमा जमाल ने मरीजों का मुफ्त इलाज किया। अल मेहदी हॉस्पिटल की तरफ से तमाम मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। मरीजों का कहना था कि मुफ्त इलाज के साथ साथ मुफ्त अद्वियात मिलने पर अल मेहदी हॉस्पिटल पक्की शाह मर्दान मियांवाली की इंतजामिया के शुक्रगुजार हैं। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।